Today, as you have seen in the thumbnail, I'll be teaching you what is the most important candle patterns or few of the most important candlesticks. I'm going to teach you 18 important candlesticks patterns which traders generally use in their trading journeys or in their setups. Now let me tell you, there are generally four types. First is a single candle pattern. It has many of these doji, dragonfly doji, gravestone doji, hammer, inverted hammer. I'm going to teach you all of these one by one. These are single candle patterns. Like the only one candle has a special feature and that candle makes it a single candle setup. And there are few two candle setups, there are few three candle setups, and there are few multi candle setups. So let's start with the single candle setups. Now what are single candle setups? In that we generally start with what is the doji. First, there are three types of doji. First is the normal one, dragonfly doji, and gravestone doji. But let's start with the normal one. Doji is like a confusion candle. Where a situation in markets where the buyers and sellers both are equally strong. So market neither goes up or neither goes down. So it forms a candle with a wick like this and a small body in between. This candle is called as a confusion candle or the doji candle, which indicates that buyers and sellers both are equally strong. Generally traders avoid trading in these candles, and even sometimes it acts as a reversal warning. In a bullish trend, if you find this, it's generally a sign that market is going to get reversed from here. Buyers and sellers are top, became equally powerful. Now sellers will start dominating. Next comes dragonfly doji. It is a long lower shadow, open high. It's like this. Long lower shadow, open, high closes near the top. It's like this. Yeah. Ignore the drawing, but yeah, this is how a dragonfly doji looks. What is the effect? What is the psychology between this? Let's discuss that. Sellers pushed down, buyers fought back hard. So sellers pushed the market down till here, but buyers were strong as well. So they brought the market back to this zone. So now this candle is formed. Now what does this candle indicate? It indicates that it's a bullish reversal at a downtrend at a bottom. So this is a downtrend. Here if that candle is formed, it is a sign that markets are gonna go up from here. And now opposite of this thing is called as the gravestone doji. This candle is somewhat like this, covering the lower part, long upper shadow. This is called as the upper shadow, and open low closes near the bottom. Yeah, near the bottom. Now this is a sign that buyers pushed up the sellers, crushed the rally. Buyers pushed up and sellers crushed the rally. So this effect, how does this candle affect the markets? This candle is a sign that bearish reversal. So this is an uptrend, and here if this candle is formed, it is a good sign that market is gonna go reverse from here. It is completely opposite of the previous one. Dragonfly doji and gravestone doji are completely opposites of each other. And next come to few other single candle patterns like the hammer pattern. Now there are two hammers, inverted hammer and normal hammer. If we start with it, inverted hammer, we'll start with normal hammer. Definitions are, it's a small body, long upper shadow and tiny upper. It's like this, I'll draw it. You see this candle here? Yeah, this is called as the hammer candle. It's just like hammer, जैसे कि हम लोग hammer pronounce करते हैं ना, this is a hammer. जैसे hammer generally होता है ऐसा है वैसा ही. यहाँ पर sellers price को drop करते हैं. Sellers drop price, buyers reclaim control. मतलब sellers price को नीचे लेके जाते हैं and buyers फिर से price को यहाँ तक ऊपर ले आते हैं. So this is called as a hammer pattern. इसका effect क्या होता है? Bullish reversal at a downtrend bottom. तो जैसे मार्केट्स नीचे जा रहा है, यहाँ से वो ये कैंडल फॉर्म करके बुलिश रिवर्सल बना देता है. नेक्स्ट इसका थोड़ा सा सिमिलर बट ऑपोजिट. यहाँ पर इट इज अ सेम पैटर्न लाइक दिस, हैमर पैटर्न ओनली, बट इट्स रिवर्स, इन्वर्टेड हैमर, लाइक बस इसको उल्टा कर दिया गया है, इन्वर्टेड हैमर. इसका साइकोलॉजी ये है, बायर्स टेस्टेड हायर एंड सेलर्स पुश बैक. यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग थे तो मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया क्योंकि सेलर्स के पास भी पावर था. और इसका इफेक्ट क्या पड़ा? इफेक्ट ये पड़ा कि बुलिश रिवर्सल एट अ डाउन ट्रेंड बॉटम.
यहाँ मार्केट बुलिश था, यहाँ से रिवर्सल एट sorry यहाँ से market was going downwards and after this candle was formed here market started going upwards. And next comes the shooting star pattern. It is a small body, longer upper shadow and tiny lower shadow. It's like a small body, yeah, like this exactly. Small body, longer upper shadow and a tiny lower shadow. इसका साइकोलॉजी इज लाइक बायर्स पुश्ड हाई, सेलर्स स्लैम्ड प्राइस बैक डाउन. मतलब बायर्स के पास ताकत था, उन्होंने मार्केट को यहाँ तक ले गए, बट सेलर्स ने क्या किया, फिर यहाँ से नीचे लाके ये जोन तक अपना क्लोज कर दिया, अपना कैंडल क्लोज हो गया. तो इसका इफेक्ट क्या होता है, बेरिश रिवर्सल एट एन अप ट्रेंड टॉप. तो मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है, ये कैंडल बना और फिर यहाँ से रिवर्सल हो गया. दीज आर फ्यू रिवर्सल पैटर्न्स, हैमर पैटर्न्स एंड द शूटिंग स्टार जनरली कंसिडर्ड रिवर्सल पैटर्न्स. एंड these all were like one candle patterns, dragonfly doji types and hammer types. And now we have two candle patterns, मतलब ऐसे patterns जिसमें दो कैंडल की जरूरत होती है. फर्स्ट वन इज बुलिश इंगल्फिंग. मतलब एक छोटा रेड कैंडल है, इसको एक बड़े ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर दिया. इनगल्फ मीन्स पूरा लाइक यू नो फुल रेड कैंडल का पूरा बॉडी इस ग्रीन कैंडल के अंदर आ रहा है. अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है, और यहाँ पर तुम अगर जूम करके देखो, दिस पार्ट ग्रीन कैंडल completely engulfed the previous red candle. So this is called as the bullish engulfing pattern, which indicates that buyers are so strong compared to sellers. और यहाँ से एक bullish reversal भी आ सकता है. अगर एक डाउन ट्रेंड पे ये कैंडल बनता है, इट इज अ साइन दैट बुलिश रिवर्सल भी आ सकता है. नहीं तो अगर अप ट्रेंड पे है, दिस कैंडल कैन गिव अ साइन दैट अभी भी बायर्स ही स्ट्रांग है. नेक्स्ट कम बेरिश इंगल्फिंग, इसका ऑपोजिट. यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है और उसको एक बड़े रेड कैंडल ने इंगल्फ कर दिया है. दिस इज ऑल्सो सेम साइकोलॉजी है कि यहाँ पर सेलर्स ओवर पावर हो चुके हैं. अगर ये एक बेरिश ट्रेंड पे आ रहा है, बेरिश रिवर्सल होता है एट अप ट्रेंड टॉप. तो इसका ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये कैंडल फॉर्म हो गया, इसका मतलब सेलर्स अभी भी स्ट्रांग है. नहीं तो एक बुलिश ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड में अगर ये कैंडल बना है, इसका ये मतलब है कि यहाँ से सेलर्स स्ट्रांग हो चुके हैं. और तुम लोग अपना या तो सेल साइड का एंट्री बना सकते हो, नहीं तो अगर अब तुम लॉन्ग साइड की एंट्री पे हो, यू कैन कट शॉर्ट योर रिस्क्स और अपना एंट्री बंद कर सकते हो. नेक्स्ट हम पियर्सिंग लाइन. डेफिनेशन इज ग्रीन कैंडल क्लोजेस अबाउट द मिड पॉइंट ऑफ द प्रायर रेड कैंडल. मतलब एक रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल क्लोजेस अबाउट द मिड पॉइंट. तो एक एक ये रेड कैंडल है, ठीक है. तो इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है जो इसके नीचे से शुरू होता है और कैंडल के कम से कम 50% को क्रॉस करता है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ पियर्सिंग पैटर्न. पियर्सिंग लाइन भी बोलते हैं बहुत लोग, इट हैज बहुत सारे नाम हैं इनके. और इसका इफेक्ट क्या पता है, बुलिश रिवर्सल एट ए डाउन ट्रेंड. डाउन ट्रेंड पे अगर ये बनता है तो यहाँ से बुलिश रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. और इसका ऑपोजिट है ये वाला डार्क क्लाउड कवर. इसके बहुत सारे नाम हैं, पता है. सो कंफ्यूज नहीं होना है, जो नाम तुमको कंफर्टेबल लगता है वो नाम यूज़ कर लो. और यहाँ क्या होता है, जैसे यहाँ रेड कैंडल था और ग्रीन कैंडल इसके हाफ तक आया, यहाँ पर उसका ऑपोजिट होता है. रेड कैंडल क्लोजेस द मिड पॉइंट ऑफ अ प्रायर ग्रीन कैंडल. एक पहले से ग्रीन कैंडल है, तो एक रेड कैंडल क्लोज होता है इसके टॉप से स्टार्ट होके मोर देन 50% कैंडल को क्रॉस करके स्टॉप होता है. तो इसका भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट दिस इज रिवर्स है. तो इसमें क्या होता है कि बेरिश रिवर्सल एट एन अप ट्रेंड. मार्केट ऊपर जा रहा है और ये सेटअप बनता है, तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. एंड उसके बाद हमारा आता है सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द मॉर्निंग स्टार. मॉर्निंग स्टार क्या होता है कि एक रेड कैंडल होता है, फिर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल आता है, फिर एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल आता है. तो ये जो लास्ट में जो ग्रीन कैंडल बना है, दैट शुड क्रॉस 50% ऑफ द फर्स्ट रेड कैंडल. तो इसको बोलते हैं मॉर्निंग सोल्जर्स. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन दैट मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है. और अगर डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है. और अगर ऊपर चल रहा है तो स्टिल अ पॉजिटिव साइन. यू कैन होल्ड ऑन टू योर ट्रेड्स इफ यू आर इन अ लॉन्ग पोजिशन. नेक्स्ट कम्स अ इवनिंग स्टार. दिस इज कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ द मॉर्निंग स्टार. मतलब मॉर्निंग स्टार के ऑपोजिट में है.
इसमें क्या होता है, एक ग्रीन स्मॉल कैंडल, फिर एक रेड स्मॉल कैंडल, और उसके ऊपर एक बिग रेड कैंडल. This should cross at least 50% of the first green candle. So this is same, it shows a bearish reversal at an uptrend. And next comes Marabuzu. Marabuzu is a completely unique type of candle. Like अगर आपने कोई भी कैंडल देखा होगा तो उसमें ऐसे बॉडी रहता है और एक विग रहता है ऊपर और एक विग रहता है नीचे, मतलब प्राइस नीचे जाके ऊपर जाके फिर यहाँ क्लोज हुआ है, सो इट क्रिएट्स अ विग. But when we talk about Marabuzu, it is a completely new, a completely different type of candle है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें विग ही नहीं रहता है. Like you see this candle exactly here, ये कैंडल के जैसे इसमें ना विग है, इसमें सिर्फ बॉडी है. This green Marabuzu और bullish Marabuzu, this states that buyers are strong here, क्योंकि सेलर्स मार्केट को नीचे ला ही नहीं पाए, नीचे विग है ही नहीं, तो जहां से स्टार्ट हुआ वहां से ऊपर जाके क्लोज हो गया, मतलब बायर्स स्ट्रांग है. दिस इज जनरली यूज्ड फॉर बुलिश कंटिन्यूएशन. सर आप एक लॉन्ग ट्रेड में बैठे हैं एंड यू सी दिस कैंडल, इट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर यू, यहाँ से मार्केट्स अभी भी ऊपर जाने वाला है. एंड ये ग्रीन है तो ये बुलिश माराबुजू है. अगर ये रेड हो जाता है, इट्स अ रेड कैंडल विदाउट अ विग, तो यहाँ से मार्केट्स नीचे जाने वाला है, बेरिश कंटिन्यूएशन है. एंड नेक्स्ट कम्स फ्यू मोर इंपॉर्टेंट वंस, 3 वाइट सोल्जर्स. इसको यू नो कंटिन्यूस 3 ग्रीन सोल्जर्स, बहुत सारे नाम देते हैं. सो इसमें कुछ नहीं होता, कंटिन्यूस ऐसे 3 ग्रीन कैंडल्स बन जाते हैं, विच शोज बायर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू सेलर्स. इट इज़ अ बुलिश रिवर्सल. अगर डाउन ट्रेंड में बना मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, और ऑलरेडी अगर ऊपर जा रहा है तो इट्स स्टिल अ वेरी गुड साइन फॉर यू. और यहाँ पर आता है 3 ब्लैक क्रोस, ये इसका ऑपोजिट है. यहाँ कंटिन्यूस 3 रेड कैंडल्स अगर बन गए ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है. अगर एक अप ट्रेंड में यहाँ बना मतलब यहाँ से क्लियर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है. नेक्स्ट कम्स ट्वीजर टॉप. 2 कैंडल्स, एक ग्रीन एक रेड है, इमेजिन करते हैं ऐसा, दोनों इक्वल टॉप पे आके टच करके फिर नीचे जाते हैं. रेसिस्टेंस होल्ड ट्वाइस, सेलर डिफेंड्स द लेवल. मतलब ये लेवल जो है ना, यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं. दे आर लाइक तुम मार्केट को इस प्राइस पे लाओ, यहाँ से हम इसको नीचे ले जाने का काम करेंगे. वो जोन पे बड़े हेज फंड्स या इंस्टीट्यूशंस अपना अमाउंट डाल के बैठे हैं कि व्हेनेवर इट कम्स हियर आई स्टार्ट सेलिंग द शेयर और सेलिंग द स्टॉक और सेलिंग द करेंसी पेयर. एंड सिमिलर गोस विथ ट्वीजर बॉटम. दिस इज अ जोन वेयर बायर्स आर सिटिंग हियर. यहाँ सपोर्ट होल्ड्स, मतलब यहाँ 2 बार बाउंस बना, मतलब दिस इज स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ सपोर्ट जोन, एंड यहाँ बायर्स आर स्ट्रॉन्ग. इफेक्ट इट शोज अ बुलिश रिवर्सल डाउन ट्रेंड. अगर एक डाउन ट्रेंड यहाँ स्ट्रॉन्ग आया तो यहाँ से बुलिश रिवर्सल बन सकता है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ट्वीजर टॉप, यहाँ अगर एक अप ट्रेंड आया तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड बन सकता है. ठीक है, सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स विच एवरी ट्रेडर हैड टू नो. So yeah, all the best for all of you. Happy trading. If you have any sorts of doubt, you can ask me in the comment sections, or you can message me on my Instagram. You'll find my Instagram handle in the description.